Hello dear students, once again you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we will discuss a chapter from 9th class and the name of the chapter is The Beggar and the name of the author is Anton Chekhov. Anton Chekhov is a Russian writer and in this chapter he describes the life of a beggar who earlier was not willing to do any work, but later with the compassionate behavior of a lady cook, that lady changed in his thinking and later he lead a peaceful life and a respectful life. And in this chapter Anton Chekhov, there are three characters we see here: Sergei, Olga, and a beggar named Lashkov. Sergei was a lawyer, Olga was a cook, and Lashkov was a beggar. When the chapter starts, जब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, a beggar was begging alms. तो वो beggar है, वो भीख मांग रहा था. Beggar था, वो भीख मांग रहा था, and he was saying that he had not eaten anything for the last 3 days and he had not even 5 kopecks to pay for the rent for a room. And he also described his life that he had been a teacher 8 years ago and circumstances changed and he was removed from the school because a conspiracy was done against him by his colleagues. तो उसके कलीग्स के द्वारा कोई षड्यंत्र रचा गया था जिसकी वजह से उसको वो स्कूल छोड़ना पड़ा था. He had been a teacher. उसने अपने बारे में ये बताया कि वो टीचर होता था और उसको बाद में वहाँ से निकाला गया कॉन्स्पिरेसी की वजह से. एंड ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क फॉर द लास्ट 1 ईयर. तो पिछले 1 साल से उसके पास कोई भी काम नहीं था. जो यहाँ पे सरगेई है, ही लुक्ड एट दैट beggar and he found that the man was a drunkard. तो वो ड्रंकर था, एक शराब पिया हुआ था. and both there were spots on his cheeks. तो उसके जो गाल थे उन पर भी स्पॉट्स थे, गहरे निशान थे. and Sergei was thinking that perhaps he had seen that beggar somewhere else, कि उसने शायद उसको कहीं पर देखा था. तो जो beggar था वो कंटिन्यू कह रहा था, he was also saying that he got an offer for a job but he did not have any money to go there. लेकिन उसके पास वहाँ पर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे. तो यहाँ पर वो उसने ये भी बताया और उसको ये भी बताया that though he was not willing to do such a shameful act of begging, यद्यपि वो काम नहीं करना चाहता था, but his circumstances forced him to do so. लेकिन उसकी जो परिस्थितियाँ थी वो उसको ऐसा करने से कर रही थी उसको कि उन परिस्थितियों की वजह से उसको ये काम करना पड़ रहा था.
तो जो सर्गेई है he looked over his shoes, looked over his shoes and the heel of his shoes were differ, the heels were in differ size, और जो हील थी उसकी वो डिफर साइज में थी, अलग अलग उनका साइज था। तो उस चीज़ को देख करके सर्गेई को कुछ याद आ जाता है। तो he reminded that the man who was a beggar, he had met Sergei day before the previous day, कि वो कल से एक दिन पहले उसको मिला था। and that man informed him, the beggar had informed him that he was a student, कि वो एक विद्यार्थी था and was removed from that school, और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। and he had not told that he was a teacher, और यहाँ पर उस बैगर ने ये नहीं बताया था कि वो टीचर था। अब उसकी बात सुनकर के जो बैगर है he gets terrifying, तो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, he was feeling shy, तो डर जाता है और वो कहता है no I had not done like this, कि मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, I had not spoken like this, मैंने ऐसा नहीं बोला था, और I can prove myself, मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ, I could show you my documents, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ। तो जो यहाँ पे सर्गेई है उसने कहा that you have told enough lie, कि तुमने बहुत झूठ बोल लिया, और तुमने मुझे यही बात कही थी that you were a student not a teacher, कि तुम एक स्टूडेंट थे और न कि एक टीचर थे। तो और दूसरा उसने कहा उसको that you are a cheater man, तुम एक चीटर हो, एंड यू आर ए ड्रंकन मैन, तुम एक ड्रंकन मैन हो, पियक्कड़ आदमी हो, और यू ऑलवेज स्पोक लाई, और तुम हमेशा झूठ बोलते हो, एंड आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर टू द पुलिस। और जो सर्गेई है उसने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब उसकी ये बात कहते ही जो यहाँ पे बैगर है लश्कोफ, he got terrified, वो बैगर है वो डर जाता है, बैगर got terrified, वो डर जाता है जब उसने सर्गेई ने उसको कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो उस बात को सुनकर के वो डर जाता है। and he accepted that thing that he had been telling lies, तो उसने इस बात को स्वीकार किया that he had been telling lies, और उसने ये बात स्वीकार की कि वो झूठ बोल रहा था। nor he was a student nor he was a teacher, ना तो वो स्टूडेंट था ना ही टीचर था। on the other side he was a singer in a Russian group, तो वो एक रशियन ग्रुप में एक सिंगर था, तो वहाँ पर he was removed from that group because of his drinking problem, उसको वहाँ पर रिमूव कर दिया गया था उसकी शराब पीने की जो समस्या थी उसकी वजह से। for his drinking problem, तो उसकी जो शराब पीने की समस्या की वजह से उस बैगर को उस ग्रुप से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर अब वो उसको कहता है जो सर्गेई है कि यू शुड नॉट टेलिंग लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू कुड डू एनी वर्क, तुम और भी कुछ काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो बैगर है ही रिप्लाइड दैट देयर इज़ नॉट एनी वर्क अवेलेबल फॉर हिम, कि उसके लिए कोई भी काम अवेलेबल नहीं था। तो सर्गेई कहता है कुड यू चॉप वुड फॉर हिम, कुड यू चॉप वुड फॉर हिम, तो क्या तुम उस मेरे लिए जो लकड़ियां हैं काट सकते हो, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काट सकते हो, ये बात उसने उसको पूछी। एंड देन ही रिप्लाइड दैट यस ही कुड डेफिनेटली वुड चॉप फॉर हिम, एंड दैट सर्गेई आस्क्ड his cook Olga, उसने अपनी
जो कुक थी उसको ओल्गा को बुलाया टू टेक दैट बैगर टू द वुड शेड, कि वो उसको वुड शेड पर ले जाए फॉर चॉपिंग वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए। एंड ही लुक्ड एट द इंसिडेंट्स, और वो उसको पूरी इंसिडेंट को देख रहा था। द बैगर वेंट विद ओल्गा टू द वुड शेड, वो वहाँ पर चला जाता है उसके बाद। और दो ही वॉज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यद्यपि उसका मन नहीं कर रहा था। फर्स्ट ही वॉज ड्रंक्ड, पहले तो वो शराब पिया हुआ था। फर्स्ट ही वॉज ड्रंक्ड, ऑन द अदर हैंड ही वॉज आल्सो हंग्री, दूसरा वो भूखा भी था। एंड ही हैड नॉट इनफ पावर इन हिज बॉडी टू डू एनी वर्क, उसके अंदर ऐसा कुछ शक्ति भी नहीं थी जिससे वो कर सके। आफ्टर दैट सर्गेई वेंट टू हिज डाइनिंग रूम, वहाँ पर डाइनिंग रूम में चला जाता है और वहाँ से वो इंसिडेंट को देखता है और वो पाता है दैट ओल्गा वॉज स्टेयरिंग एट दैट मैन, वो उसको घूर कर देख रही थी। एंड परहैप्स विद हिज एक्सप्रेशन इट वॉज बीइंग फाउंड आउट, ये देखा जा सकता था दैट शी वॉज स्कोल्डिंग दैट मैन, वो उस आदमी को स्कोल्डिंग कर रही थी, स्कोल्डिंग दैट मैन, उस आदमी को वो स्कोल्ड कर रही थी, तो उसको डांट रही थी। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा सर्गेई ने कि जो बैगर है ओल्गा थ्रो एन एक्स टुवर्ड्स हिम, उसने उसकी तरफ एक जो कुल्हाड़ी थी वो फेंक दी। एंड ऑर्डर्ड हिम टू चॉप द वुड, और उसको ऑर्डर दिया कि वो लकड़ियाँ काटे। अब उसने ही वॉज सिटिंग इन अ पोजिशन बाय पुटिंग हिज चिन ऑन हिज फिस्ट, अपनी थोड़ी को अपनी वहाँ पे हथेली पर रखे हुए बैठा हुआ था। एंड ही वॉज थिंकिंग परहैप्स समथिंग, और उसके बाद ही स्टार्टेड चॉपिंग वुड, उसने काटना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज केयरफुल नॉट टू हिट ऑन हिज शूज और ऑन हिज फीट, वो यद्यपि वो यहाँ पे सावधान था कि उसको न लगे, और उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्टैंड स्टेबल, वो खड़ा हो सके उस प्रकार से। और बाद में जो यहाँ पर जो ओल्गा है, शी गेव इंफॉर्मेशन आफ्टर एन आवर, गेव इंफॉर्मेशन, तो उसने बाद में ये सूचना दी दैट all the wood had been chopped, कि जो वुड थी वो काटी जा चुकी थी। उसने फिर बाद में यहाँ पर सर्गेई ने उसको कहा टू गिव हिम हाफ रूबल, वो उसको हाफ रूबल दे दे, और उसको ये भी कह दे दैट ही कुड कम on the very first day of every month and he could get a work there। तो उसके बाद जैसा भी महीना जिस समय होता था तो वो वहाँ पर आ जाता था काम करने के लिए, और उसको यहाँ पे 20 to 25 जो कोपैक्स थे, जो करेंसी थी, वो वहाँ पर उसको काम करने के लिए मिल जाती थी। अब कई बार उसको लगता था कि जो यहाँ पे बैगर है ही वॉज नॉट इन ए ड्रिंकिंग पोजीशन, कि अब वो शायद उस अवस्था में नहीं था कि वो पीता था। तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि अब उसने शायद जो शराब पीना था वो कम कर दिया था। और जब यहाँ पर जो सर्गी है ही शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, सर्गी ने शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, एक नए घर में शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, तो जहाँ पर उसने एक नए घर में प्रवेश किया तो वहाँ पर ही हायर्ड दैट बैगर, तो उसने हायर्ड दैट बैगर फॉर हेल्पिंग इन टेकिंग द फर्नीचर फ्रॉम दैट ओल्ड हाउस टू न्यू वन, तो उस नए घर में उसको सामान ले जाने के लिए। अब ही वॉज नॉट डूइंग जॉब ऑनेस्टली, ईमानदारी से वो नहीं कर रहा था, बिकॉज ही हैड नॉट इनफ
पावर इन हिज बॉडी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। एंड ही वॉज ओनली डूइंग अ लाइट वर्क, हल्का सा काम कर रहा था। द अदर वर्कर्स दे वर मेकिंग फन ऑफ बिकॉज ही वॉज ड्रिंकिंग एंड ही वॉज इन वीक इन बॉडी, तो दूसरे उसके वहाँ पर वो कर रहे थे। तो उसके बाद जो सरगेई ने है, ही gave him 1 रूबल फॉर दैट वर्क, तो 1 रूबल उसको वहाँ पर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर वो उससे उसका नाम पूछता है। एंड द बैगर आस्क्ड टोल्ड हिम दैट हिज नेम वाज लस्कोव, तो उसका नाम लस्कोव था। यहाँ पर हमें उसके बाद वहाँ पर पता चलता है दैट हिज नेम वाज लस्कोव। और जो सरगी है उसने उसको कहा, ही हैंड हिम ओवर अ लेटर, उसको एक लेटर हैंड हिम ओवर किया, उसको एक लेटर दिया। एंड सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि उसके एक मित्र के पास उसको भेज दिया। और वो उसको कहा दैट इफ़ यू कुड राइट समथिंग, क्या तुम कुछ लिख सकते हो? तो उसने कहा यस आई डेफिनेटली कुड राइट, कि मैं लिख सकता हूँ। तो वो लेटर लेकर के उसके फ्रेंड के वहाँ पर चला जाता है। उसको कह दिया उसने कि दैट यू कुड फाइंड सम वर्क देयर, कि जो मेरे फ्रेंड हैं वो तुम्हें कॉपी करने का कुछ काम दे देंगे। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 years, लेकिन उसके 2 साल बाद तक द बैगर did not come there, तो उसके बाद लगभग 2 साल के तक वो वहाँ पर नहीं दिखा। he could not find there, वो उसको ढूंढा नहीं जा सकता था, because he had gone somewhere else, तो वो वहाँ पर चला गया था। and one day Sergey went to a theater, तो एक दिन वो थिएटर पर कोई मूवी देखने गए होंगे। and he was purchasing ticket फॉर थिएटर, और वो थिएटर के लिए टिकट परचेज कर रहे थे। एट दैट वेरी टाइम ही फाउंड अ लिटिल मैन, एक छोटे आदमी को वहाँ पर उन्हें छोटी हाइट वाले आदमी को वहाँ पर देखा। एंड ही वॉज वीयरिंग अ कोट एंड अ हैट, तो एक हैट उसने पहनी हुई थी। एंड Sergey recognized that man was Lashkov, तो उसने यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि वह व्यक्ति लश्कोव था। तो उससे पूछा दैट यू आर लश्कोव, तो उसको पहचान गया यहाँ पर जो बैगर था, यस आई एम लश्कोव, कि मैं लश्कोव हूँ। तो उसने पूछा उससे हाउ वॉज ही, कि वो कैसा था। एंड हाउ वॉज हिज बिजनेस वॉज गोइंग, कि उसका काम धंधा कैसे चल रहा था। तो उसने उसको बताया दैट आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई गॉट 30 to 40 रूबल पर मंथ, 30 to 40 रूबल्स पर मंथ, जो उसको लगभग 30 से जो 40 रूबल थे वो पर मंथ मिल रहे थे अपने उसके काम के लिए। अब यहाँ पे जो सरगी है, he replied him that he was like his godson, वह उसका godson की भांति है। because due to Sergey he was able to get reformed himself, कि सरगी की वजह से जो बैगर था वो लश्कोव था, वो अपने आप को सुधार पाया। यदि शायद उस दिन उसको न मिला होता, if he had not met to Sergey, then his condition would be differ, तो उसकी कंडीशन डिफर होती। और यहाँ पर ये बात है जो ये लश्कोव है, he also accepted, ये बात उसने स्वयं स्वीकार की, that if he had not met him too with that man he had been telling lying, तो वो इस समय भी झूठ बोल रहा होता। तो यहाँ पर उसने बताया कि जो है he was very grateful to Sergey, तो सरगी के प्रति वो ग्रेटफुल था। एंड आल्सो ग्रेटफुल टू ओल्गा और द कुक, तो उस ओल्गा कुक के प्रति भी वो ग्रेटफुल था, आभारी था, ये बात उसने स्वीकार की। तो जो यहाँ पे सरगी है
वो कहता है वो सरप्राइज दैट हाउ वाज ओल्गा दैट शी हेल्प यू इन रिफॉर्मिंग। तो ओल्गा ने कैसे, भाई तुम उसके प्रति आभारी हो, तो ओल्गा ने ऐसा क्या किया था उसके प्रति आभारी था। तो यहाँ पर जो लस्कोफ है उसने बताया कि हर बार जब वो उसके वहाँ पर जाता था, he did not chop a single wood, कि उसने तो एक सिंगल वुड भी नहीं काटी। इन स्पाइट द कुक ओल्गा did all the job for him, कि केवल जो ओल्गा थी वो ही उसके लिए सारा का सारा काम कर रही थी। She was feeling sad, वो उसके लिए उदास महसूस कर रही थी। और she was kept crying for that man, वो उसके लिए रोती रहती थी। that nothing could be done good for that man, कि उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और उसके जो नोबल डीड्स थे, for the noble deeds and the gentle behavior of that lady, he was a reformed person। उसकी व्यवहार की वजह से, उसके कामों की वजह से he could be able to change himself, वो अपने आप को यहाँ पर चेंज करने के लायक हुआ। तो उसके बाद जो यहाँ पर थिएटर की बेल हो जाती है और he went from there, और जो लस्कोफ है वो वहाँ से उसको, जो सर्गी को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। Thus we can see that the chapter The Beggar, written by Anton Chico, is an interesting story in which the beggar was reformed by the behavior of a gentle cook, Olga, who had done the work for the beggar। उसके लिए जो उसने काम किया, उसकी वजह से जो बैगर है, जो पहले एक खराब जो जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके जीवन में सुधार हो गया और वहाँ पर उसमें एक पीसफुल और एक रिस्पेक्टेडफुल लाइफ वो जीने लग गया। आशा है आपको आज की जो कहानी है, जो हमारा बैगर है, जो लेसन है, उसकी जो समरी है वो फुल्ली आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।